अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड की सूरत हाल से मुतालिक पहलुओं का जायजा लिया है। भारत राष्ट्र समिति ने MGNREGS के फंड्स को दीगर स्कीमों के लिए इस्तेमाल करने के मरकज़ के इल्ज़ाम के खिलाफ कल तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज की अपील की है। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अहदेदारों से कहा है कि वो ऑयल, पाम और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की मदद करें। चेन्नई में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में माहौलियाती मंजूरी के बगैर दरियाई कृष्णापर, पालामूर, रंगारेड्डी प्रोजेक्ट और डिंडी प्रोजेक्ट तामीर करने पर तेलुगु हुकूमत पर भारी जुर्माने आयद किया है। आंध्र प्रदेश के खोटे सिक्के को तेलंगाना में चलाने की चंद्रबाबू की कोशिश, वज़ीर फाइनेंस हरीश राव का बयान। एपी का खोटा सिक्का क्या तेलंगाना में सही माना जाएगा? वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने यह कहते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर मुत्तहिदा आंध्र तेलंगाना पर तंज किया। विज़रा अजय कुमार, श्रीनिवास गौड़ और कुप्पुला ईश्वर के साथ एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर हरीश राव ने कहा कि खम्मम में चंद्रबाबू नायडू का शो ऐसे ही था जैसे अकल से पैदल शख्स के आगे पीछे जमघटा होता है। उन्होंने कहा कि बाबू का कहना है कि रियासत आंध्र प्रदेश को मखरूज बना दिया गया है और उसकी तरक्की न हो सकी, लेकिन आंध्र की आवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया, तो अब वो तेलंगाना में आवाम को कहते गए हैं कि वो रियासत को तरक्की देंगे, जबकि वो एपी के लिए कुछ न कर सके तो फिर वो तेलंगाना में क्या कर सकते हैं। తెలంగాణ నేనేదో అభివృద్ధి చేస్తా వెనకనేమో చేసిన ఇక దాన్ని ఉద్ధరిస్తా అని చెప్పి ఆయన గారు నిన్న మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆయన మాటలు ఎట్లున్నాయంటే ఒక సామెత ఉంటుంది తెలంగాణలో, చచ్చిపోయిన బర్రెనట పలిగిపోయిన బుడ్డడు పాలిచ్చిందట. గట్లున్నది చంద్రబాబు గారు మాట్లాడింది. అసలు నిన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలే నీ పాలన బాగలేదని చిత్తుగా ఓడించి ఎల్లగొడితే గీడికి వచ్చింగా నువ్వేమో చేస్తా అని మాట్లాడతావు. అసలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ప్రాంతం అత్యధికంగా దోపిడీకి గురైందంటే, అత్యధికంగా నిర్లక్ష్యానికి గురైందంటే అది చంద్రబాబు 9 ఏళ్ల పాలనలో జరిగింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడే గౌరవనీయులు మా మంత్రివర్యులు చెప్పినట్టు అది యువతనైతేమి, ఉద్యోగులైతేనేమి, విద్యార్థులైతేనేమి, రైతులైతేనేమి అన్ని వర్గాలను ఈ ప్రాంతానికి తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఇవాళ మా పిల్లలు, ఆనాటి యువత మాకు ఉద్యోగాలు కావాలని, మా పల్లెలు అభివృద్ధి కావాలని చెప్పి తెలంగాణ యువత అడిగితే వాళ్ళని నక్సలైట్ల పేరిట కాల్చి చంపింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మర్చిపోయిందా? తెలంగాణ సమాజం మర్చిపోలే, తెలంగాణ యువత ఇప్పటికీ మర్చిపోలే. ఉద్యోగులనేమో మా శ్రీనన్న చెప్పినట్టు గుర్రాలతో దొక్కిస్తేవి, వాటర్ క్యాన్లతో కొట్టిస్తేవి. విద్యార్థులను, యువతను మా ప్రాంత అభివృద్ధి గురించి, మా ఉద్యోగాల గురించి అడిగితే నక్సలైట్ల పేరు మీద కాల్చి చంపుతీవి. హైదరాబాద్ను ఫ్రీ జోన్ పేరిట మొత్తం హైదరాబాద్ను హస్తగతం చేసుకొని తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువత నోట్లో మట్టి కొట్టినటువంటి వ్యక్తి మీరు. ఇక నేను ఇది చేసినా, అది చేసినా, వెనకటింత ఉద్ధరించినా అని చెప్తే మీ విషయంలో స్పష్టత ఉంది. ఎందుకంటే అప్పట్లో బిల్ గేట్స్ వస్తే, ఆయన స్విట్జర్లాండ్ ప్రెసిడెంట్, వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు వస్తే మీరు ఏ రకంగా చెప్పిండ్రో ఆయనే చెప్పాడు కదా. మా దేశంలో అయితే ఇట్లా చేస్తే జైలు వేస్తారని చెప్పాడు ఆయన పైన. మీరు చెప్పే మాటలు గురించి తెలంగాణ ప్రజలకు పూర్తి స్పష్టత ఉంది. నేను ఇది చేసినా, నేను అది చేసినా అని మీరు ఏమైనా చెప్పగలుగుతారు. చంద్రబాబు గారి స్టైల్ ఎట్లుంటుందంటే, పొద్దుగాల ఇలా తెల్లారుతుందంటే నా వల్లనే, పొద్దుగాల కోడి కూస్తున్నదంటే నా వల్లనే అని చెప్పినా చెప్తోంది ఆయన. నువ్వు అన్నీ చెప్తావు, ఎందుకంటే ఆ క్లారిటీ ఉంది తెలంగాణ ప్రజలకు. काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम पर KTR ने बीजेपी कायदीन से सवाल किया, क्योंकि मरकज़ में बीजेपी ही बरसर इख्तिदार है। तेलंगाना के बीजेपी अरकान पार्लिमान और मरकज़ी वज़ीर इसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और काजीपेट में रेलवे कोच के क़याम का फ़ैसला मरकज़ी हुकूमत ही का है। इसीलिए KTR ने मरकज़ी हुकूमत की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वज़ीर और कायदीन व अरकान पार्लिमान से दरियाफ़्त किया कि उन्होंने इस फैक्ट्री के क़याम के लिए क्यों कोशिशें नहीं की, जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार के मौके हासिल हो सकते हैं। अगर बीजेपी हुक्मरान दूसरी रियासतों में कोच फैक्ट्रीज़ कायम कर रही है तो फिर वो रियासत तेलंगाना में मंजूर करदा फैक्ट्रियों को क्यों कायम नहीं करती? यानी ये मरकज़ी हुक्मरान तेलंगाना के अवाम की तरक्की और रोज़गार से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। शायद इसीलिए इनके किसी कायद ने अब तक कभी मरकज़ से इस्तिफ़सार तक नहीं किया है, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने आसाम में कोच फैक्ट्री कायम करने का ऐलान किया है।
हमने साइबर क्राइम के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, मुजरिम जहां भी छुपे हों इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद का बयान। मुजरिम जहां भी छुपे हों हम इन्हें पकड़ रहे हैं। हम साइबर क्राइम्स के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। मंशियात के सप्लाई पर भी नारकोटिक्स विंग्स नज़र रखे हुए हैं और इसके खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं। हम ऑपरेशन इसी के रूप के ज़रिए ट्रैफिक को बहाल कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने सालाना रिपोर्ट में कहा कि आम जराइम में कमी आई है लेकिन साइबर क्राइम्स में इजाफा हुआ है। हम HNV के साथ हैदराबाद की मंशियात से पाक शहर बना रहे हैं। उन्होंने अपने जायदाद धोखाधड़ी के अलावा कत्ल के 100% मामलात को हल किए हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि तमाम महकमों के मुलाजमीन इस साल जराइम पर काबू पाने और अमन व सलामती को बरकरार रखने के सिलसिले में कामयाबी से काम किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुजरिम चाहे जहां भी छुपे उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और साइबर क्राइम्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अब थोड़े मौक़ों पर टेंशन हो गया था, तनाव था। अब जैसे वो राजा सिंह MLA के वाक़यात के बाद, पर ये गंगा जमुना की तहज़ीब जो है शहर की, उसने बचा लिया। हम भी सख्ती से पेश आए हैं, PD एक्ट डाले हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को सिटी पुलिस पर भरोसा भी हुआ है। इसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स भी हुए हैं, जैसे BJP का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, वज्रोत्सव, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशंस जो हैं, उस हर मीटिंग का भी हमने पहले से ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट, प्लानिंग और जहाँ से ट्रैफिक आना है जाना है, ये सब प्लानिंग करते हुए हमारे DCPs, इंस्पेक्टर्स, ACPs सब लोगों ने बहुत मेहनत करके अमन के साथ ये सब उन्होंने पूरा किया। शहरियों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये साइबर क्राइम के तहत अलर्ट रहें। आप किसी भी ऐसे अननोन वेबसाइट्स, अननोन लिंक्स आप दबाइए मत, क्योंकि जब आप उसको प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके पूरे फ़ोन में जितने भी आपके डिटेल्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो सब उनके हाथ में हो जाते हैं और उसके बाद आपको ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप सब इससे दूर रहें और अलर्ट रहें, इसके बारे में चौकन्ना रहें। साइबर क्राइम ही नहीं, ड्रग्स के ऊपर ये साल हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग को शुरू किया था और ये एक साल में ये HNU के अब तक 10 करोड़ लोगों को ग़िज़ा फराहम की गई है। अन्नपूर्णा कैंटीन 5 रुपये में मज़ेदार खाना पेश कर रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अब तक 5 रुपये की अन्नपूर्णा स्कीम के जरिए 10 करोड़ 22 लाख लोगों को लजीज खाना फराहम किया है ताकि कोई भी भूखा ना रहे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में चल रही 5 रुपये की अन्नपूर्णा भोजन स्कीम गरीबों की भूख मिटा रही है। ये स्कीम 1 मार्च 2014 में 8 मराकज़ के साथ शुरू हुई और तेलंगाना हुकूमत के क़याम के बाद 150 मराकज़ तक बढ़ गई है। यौमिया 45,000 अफराद को खाना फराहम किया जाता है। यही वजह है कि KCR हुकूमत के साथ गरीबों की दुआएं भी मौजूद हैं। नवंबर 2022 तक इस मद में हुकूमत ने 198 करोड़ 43 लाख रुपये खर्च किए हैं। केरला हाईकोर्ट ने एक लड़के को अपनी बीमार वालिद के लिए अपने जिगर का एक हिस्सा हत्या करने की इजाज़त दे दी है। केरला हाईकोर्ट के सामने एक केस आया कि क्या 17 साल लड़का अपने जिगर का हिस्सा हत्या कर सकता है। दरअसल 17 साल लड़का अपनी बीमार वालिद को जिगर का हत्या देना चाहता है ताकि जो जिगर के आर्जे में मुब्तला हैं, लेकिन इसे उम्र रुकावट बन रही है। नतीजे में इसने हाईकोर्ट से रुजू किया और हाईकोर्ट ने इस लड़के के हक़ में फ़ैसला देकर एक मिसाल कायम की है। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कश्मीर पर रोकने की तजवीज़ पर राहुल गांधी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत कोविड बहाने से भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती है। मरकज़ को चाहिए कि वो किसी और बहाने से सामने आए। राहुल गांधी ने मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया के लिखे गए ख़त पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इसमें कहा गया था कि अगर कोविड पर प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया जाता है तो भारत जोड़ो यात्रा को रोकने या मुलतवी करने पर गौर करेंगे। कांग्रेस के कम्युनिकेशन के इंचार्ज जय राम रमेश ने निशानदेही की कि ये एक ऐसा इक़दाम है जिससे भारत जोड़ो यात्रा में खलल पैदा होगा। इसके फ़ौरन बाद राहुल गांधी ने तबसरा करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत इनकी यात्रा को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का मुतालबा कर रहा है और सफ़र रोकने के लिए बहाने तलाश कर रहा है। इसे चाहिए कि वो किसी और बहाने को सामने लाए।
अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। और देखिए यात्रा में, अब देखिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए हुकूमत ने कोरोना वायरस को जारी किया है। मराठी अखबार सामना का मजमून। एक ऐसे वक्त जब हर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है कि कोविड वायरस चीन के वुहान लैब में पैदा हुआ है और पूरी दुनिया में फैल गया, शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप ने एक नई दलील सामने लाई है। इस हद तक शिवसेना ने सरकारी मैगजीन सामना में एक मजमून शाये किया। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया का राहुल गांधी को मशवरा कि अगर कोविड की रहनुमा खतूत पर अमल ना किया गया तो हिंदुस्तान जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाएगा। अगर आप ताजमहल देखना चाहते हैं तो आपको कोरोना टेस्ट करवाना होगा। चीन, जापान और जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक में कोरोना की वबा उरूज पर है। ओमिक्रॉन BF7 किस्म की कोरोना वायरस की वजह से कई ममालिक में रोज़ाना हज़ारों नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। चारशंबे को ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट ने मुल्क में हलचल मचा दी। गुजरात में 2 और उड़ीसा में 1 ओमिक्रॉन BF7 किस्म का कोरोना वायरस पाया गया। हल्का-ए-समी कामरान के इलाके में क्रिसमस से तोहफ़ की तकसीम। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैदराबाद की क़ियादत में आज AIMIM कारवां के MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने AIMIM पार्टी की कारपोरेटरों के साथ कारवां हल्के के तहत लंगरहौर डिवीज़न के मेथोडिस्ट चर्च में ईसाई बरादरी में क्रिसमस के तोहफ़े तकसीम किए। కానీ ఎలక్షన్ తర్వాత కూడా మీకేమైనా సమస్యలు ఉంటే నాకు, నా కార్పొరేటర్లకు, లేకపోతే మా పార్టీ కార్యకర్తలకు చెప్పి మీ సమస్యల గురించి చెప్పాలి. మేము ముంగట నుండి మీ సమస్యలని తీర్చిదిద్దామని మళ్ళోసారి రెండోది, ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ నా తరపున అడ్వాన్స్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ డే మనం జరుపుకుంటున్నాము. మళ్ళోసారి ఇక్కడ పిలిచిన అందరికీ, నా ఈ చర్చ్కు సంబంధించిన పెద్దలకు అందరికీ నా తరపున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. చెప్పడం చాలా పొల్యూషన్ గురించి చెప్పారు. అదే రోజు నేను లెటర్ ఇచ్చి లంగరౌజ్ల ప్రతి ఎస్సీ లొకాలిటీ ఎక్కడెక్కడో అంబేద్కర్ నగరు, బాపు నగరు, ప్రశాంత్ నగరు, కిందిగూడ, లక్ష్మీనగర్ నేను చూశాను. చాలా ఘోరంగా ఉండే త్రాగే నీళ్ళు పొల్యూషన్ రావడం జరిగింది. సెకండ్ డే నేను MD గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను. సుమారు 2 కోట్లతోని ఇక్కడ వాటర్ లైన్స్ నిన్ననే శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళా దాని తర్వాత GHMC అధికారులు చెప్పి మొత్తం NP2 పైప్ లైన్ రీమోడలింగ్ ఆర్ CC రోడ్లు నిన్ననే అవి కూడా సుమారు నేను అనుకుంటా 3 కోట్లతోని మొత్తం ఈ లొకాలిటీస్లో అంబేద్కర్ నగర్ చెప్పాను మొత్తము ఇక్కడ రీమోడలింగ్ NP2 పైప్ లైన్ CC రోడ్లు అవి కూడా శాంక్షన్ అయినాయి. నేను అనుకుంటా ఒక 15 దినాల లోపల టెండర్ అయిన తర్వాత వర్క్లన్నీ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. నేను చెప్పేది मंगल के रोज एक अदालत ने बदनाम जमाना साम गैंग के 8 अरकान को जुलाई 2014 में एक नौजवान खातून के कपड़े उतारने और डकैती समेत दीगर मुजरिमाना जराइम के सिलसिले में मुजरिम करार दिया। मरकजी मुलजिम फैसल दियानी, एक जिम इंस्ट्रक्टर और गैंग के 6 मेंबरान जो अपने शिकार को सांपों से डराते थे को IPC की दफ़ा 452 घर में दखल अंदाजी, 395 डकैती और 506 मुजरिमाना धमकी और 354B हमले के तहत सज़ा सुनाई गई या किसी भी औरत को कपड़े उतारने की नीयत से मुजरिमाना ताकत का इस्तेमाल। 8 मुलजिमान को सिर्फ IPC सेक्शन 411 बेईमानी से चोरी की जायदाद हासिल करने के तहत सज़ा सुनाई गई। इस्तिगाशा ने कहा कि नवा मुलजिम जिस पर सिर्फ IPC सेक्शन 411 बेईमानी से चोरी की जायदाद हासिल करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था को बरी कर दिया गया।
सरकारी वकील पूनम राजू गौड़ ने कहा कि सज़ा की मकदार कल रंगारेड्डी ज़िले अदालत सुनाएगी। गौड़ ने कहा कि 7 मुजरिमान जिन पर इज्तिमाई इसमेत दरी का मुकदमा भी दर्ज किया गया था को इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। अगस्त 2014 में पहाड़ी शरीफ पुलिस ने अरकान को गिरफ्तार किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मलिका एलिज़ाबेथ की वफ़ात के बाद किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले नए करेंसी नोट के डिज़ाइन की तस्वीर जारी कर दी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 5, 10, 20 और 50 पाउंड के तमाम ही नए करेंसी नोटों में सिर्फ सामने की जानिब तस्वीर की तब्दीली की गई है, बाकी कोई और तब्दीली नहीं की गई। बयान के मुताबिक हालिया नोटों के तमाम सिक्योरिटी फीचर्स नए नोटों में मौजूद है। नए नोटों में सामने की जानिब किंग चार्ल्स की तस्वीर लगाई गई है। उसके अलावा इनकी तस्वीर का एक शिफाफ अक्स सिक्योरिटी फीचर के तौर पर सी थ्रो में दिखाया गया है, जबकि नोटों की पुष्प पर कोई तब्दीली नहीं की गई। नए नोट 2024 के वस्त में इस्तेमाल के लिए कबूल किए जाएंगे। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान 2016 के बाद पहली मरतबा आला सतह पर बातचीत हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल बयान ने कहा कि उर्दून कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर अपने सऊदी हममंसब से बातचीत की। शहजादा फैसल ने उन्हें यकीन दिलाया कि सऊदी अरब ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा इस हवाले से ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कनाडा में एक 59 साला शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में 8 नवंबर लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक हफ्ते की रात को कनाडा के शहर टोरंटो में 59 साला शख्स को चाकू के वार से कत्ल करने के वाक़े में 8 लड़कियों पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि लड़कियां जिनकी उम्रें 13 और 16 साल के दरमियान को जाए वक़ूअ के करीब से इतवार को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मकतूल, जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया, हमले के वक्त बेघर अफराद के लिए बनाई गई एक पनाहगाह में रह रहा था। पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। Is that they met each other through social media. We don't know how long they've been acquainted together with each other, but I wouldn't describe them as a gang. At this would be consistent with what we traditionally call a swarming or swarming type behavior. अफगानिस्तान में तालिबान ने यूनिवर्सिटी में ख़वातीन तालिबात पर ताहुकुम सानी पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबरनिसा अदारे के मुताबिक वज़ीर बराए तालीम मौलवी मोहम्मद नदीम के मुताबिक सरकारी व निजी जामियात में तालिबात के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस हुक्म का फौरी तौर पर इतलाक़ होगा। वज़ारत तालीम ने कहा कि उलमा ने जामियात के निसाब व माहौल का जायज़ा लिया है, जिसके नतीजे में तालिबात को मौजूद माहौल फ़राहम करने तक इनकी हाज़िरी मुअत्तल रहेगी। जल्द ही तालिबात के लिए मुनासिब माहौल फ़राहम कर दिया जाएगा। इस हवाले से शहरी परेशान न हो, हुकूमत इस फैसले पर ख़वातीन के गम से गुस्से का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा और मुत्तअद्दिद ममालिक ने तालिबान के फैसले की मज़म्मत करते हुए इस ख़वातीन के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमेरिका ने कहा कि इस इक़दाम के मनफी नताइज सामने आएंगे। वाज़ेह रहे कि आलमी सतह पर यह ख्याल किया जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका के इशारे पर काम करता है, इसीलिए इसने अफ़गानिस्तान, इराक़ और लीबिया पर अमेरिका की कारपेट बमबारी के नतीजे में हज़ारों मासूम ख़वातीन और ज़ईफ़ लोग शहीद हुए, लेकिन जब अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स याद नहीं आई और न ही कोई तनक़ीद की है। شما نومیدن باشه، نومید شایدان از 100% من براتون وعده می‌کنم شما رو می‌خوایم برای درس میگن نومیدن باشه، در درس نبود داشته باشید. गोल्डन स्टार मार्शल आर्ट्स अकेडमी की जानिब से तीसरा नेशनल कराटे चैंपियनशिप ओपन चैलेंज आगाज़ जनवरी 2023 मुबारक फंक्शन हॉल मुमताज़ बाग बारकस में 1 जनवरी को शुरू होगा। तो आज बड़ी खुशी और मसरत के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ कि गोल्डन स्टार मार्शल आर्ट एकेडमी की जानिब से तीसरा नेशनल कराटे चैंपियनशिप
ओपन चैलेंज सईद बाम साहब लेट 2023 बमुकाम मुबारक फंक्शन हॉल में 1 जनवरी यानी के साल के पहले दिन, क्योंकि सईद बाम साहब मरहूम अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने समाजी, दीनी, मजहबी तमाम कामों में बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जिसके लिए आज हमारे हरदिल अजीज टूर्नामेंट चेयरमैन सऊद बिन सईद बाम पहलवान साहब, जो हिंद केसरी पार्टिसिपेट है, हिंद केसरी पहलवान, और टूर्नामेंट के चीफ डायरेक्टर महतरम मुकाम इज्जत माब आली जनाब फैसल बिन सईद बाम साहब, और टूर्नामेंट के इंचार्ज हरदिल अजीज अब्दुल बसीर अब्दुल्ला साहब। तीसरा साल में हम ये कदम रख रहे हैं। अब अवाम नास से अपील गुजारिश है हैदराबाद के सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से, क्योंकि ये नेशनल टूर्नामेंट जो है बड़ा टूर्नामेंट है, खुला चैलेंज टूर्नामेंट है। इसमें हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से, तमाम रियासतों से तमाम हिंदू मुस्लिम खिलाड़ियां यहाँ पे शिरकत करने वाले हैं। और जो पेरेंट्स है या जो भी यहाँ पे बच्चों के साथ आएंगे और जो भी देखने को है, उन तमाम उन बच्चों की हिम्मत अफजाई करेंगे, क्योंकि आजकल के नौजवान दूसरे रास्तों पे जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को अल्लाह सलामत रखे, इनके वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बहुत बड़ा इवेंट, हिंदुस्तान का नंबर 1 इवेंट यहाँ पे करा रहे हैं। जो और भी अहम ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि इसमें जो भी शिरकत कर रहे हैं, इतना बड़ा हिंदुस्तान के नंबर 1 इवेंट सईद बाम साहब के चैलेंज नेशनल कराटे चैंपियनशिप जो है, इसमें फ्री एंट्री है, आपके लिए दाखिला फ्री है। आप सिर्फ आना है, बच्चों की हिम्मत अफजाई करना है। और टूर्नामेंट कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं कि इतना बड़ा इवेंट हिंदुस्तान में आप हर साल करा रहे हैं। आप तमाम एक बार तशरीफ लाइए, बच्चों की हिम्मत अफजाई कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जर्मनटन हॉस्पिटल और हरि ओम पॉली क्लिनिक के देर एहतमाम बहादुरपुर में मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप का इनेकाद। हरि ओम चैरिटेबल ट्रस्ट और जर्मनटन हॉस्पिटल के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप का अनजहानी ओम प्रकाश सोनी की याद में देवी बाग माता मंदिर बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन रोड पर मुनक़िद हुआ, जिसकी सरपरस्ती डॉक्टर मीर जवाज़ार खान, मैनेजिंग डायरेक्टर जर्मनटन हॉस्पिटल ने की। इस मौके पर डॉक्टर जी कृष्णा कार्तिक और डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। खुसूसियत के साथ इस कैंप के दौरान ज़ियाबेतीस, गैनोलॉजी, पाल्मोरी, थायराइड और मोटापे के मरीज़ों के अलावा आम अमराज की तशख़ीस और इलाज का एहतमाम किया गया। गौरी शंकर सोनी ट्रस्टी और श्रीमती रेणु सोनी साबिक़ा कारपोरेटर ट्रस्टी हरि ओम ने इंतज़ामात की निगरानी की। डॉक्टर अनस अंसारी जर्मनटन हॉस्पिटल मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मोहम्मद मोहिउद्दीन जीशान ने मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की। नमस्कार, मैं हरिओम पॉली क्लिनिक से गौरीशंकर सोनी बोल रहा हूँ। आज हमारे पास फ्री कैंप लगाया गया था मेरे पिताजी ओम प्रकाश जी सोनी की याद में। तो इसमें कुछ टेस्ट भी फ्री किए गए और कुछ टेस्टों पे डिस्काउंट किया गया। तो बहुत अच्छा कैंप गया। एक अंदाज़ा 80 के आसपास पीपल ने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। धन्यवाद। तो गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आज और डॉक्टर मीर जवाज़र खान साहब की हिदायत पर हम लोग जर्मनटन हॉस्पिटल की टीम को लेकर यहाँ पर आए और हमने जर्मनटन की जानिब से हरिओम पॉली क्लिनिक के साथ मिलकर ये हेल्थ कैंप किया। यहाँ पर काफ़ी सारी खिदमत अंजाम दी गई। करीब 80 लोगों ने यहाँ से इससे फ़ायदा उठाया। मुफ्त में दवाई भी दी गई, मुफ्त में काफ़ी सारे टेस्ट किए गए। काफ़ी सारे डॉक्टर्स आए थे। जर्मनटन के साथ साथ हरिओम पॉली क्लिनिक के सारे डॉक्टर्स ने इस कैंप को सक्सेसफुल बनाने में मदद की। हम शुक्रगुजार हैं इस मौके के
और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गौरी शंकर सोनी जी का तहे दिल से, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम ऐसे कैंप करते जाएंगे और लोगों की खिदमत को अंजाम देंगे। शुक्रिया। हरिओम पॉलीक्लिनिक बहादुरपुरा ब्रिज के पास में है और 9 साल से ये लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी खिदमत काबिल तारीफ़ है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी इनके साथ आगे ऐसे ही कैंप करने का और खिदमत अंजाम देने का मौका मिले। हुकूमत मुसलमानों को हर हल्के असम्बली में 500 था 700 यानी जुमला 60,000 था 80,000 दरख्वास्त गुजारों को कर्ज फ्राहम करते हुए ख़ुद को इंसाफ पसंद साबित करे। सारी रियासत के 33 अजला को 45,59,425 मुस्लिम आबादी के लिए 5,000 कर्ज़े जारी किए जाएंगे, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है। आदिलाबाद ज़िले में 111, भदादरी ज़िले के लिए 70, हैदराबाद ज़िले के लिए 1,919, ज़िले जयशंकर के लिए सिर्फ 10, जगतियाल के लिए 84, जंगांव के लिए 20, जोगलांबा के लिए 57, कामारेड्डी के लिए 109, ज़िले करीमनगर के लिए 87, खम्मम के लिए 101, कुमरम भीम के लिए 56, महबूबाबाद के लिए 28, महबूबनगर के लिए 121, मंशियारियाल के लिए 50, मेदक के लिए 56, मिर्चल के लिए 257, मुलगू के लिए 13, नागर कुरनूर के लिए 58, नलगुंडे के लिए 109, नारायणपेट के लिए 53, निर्मल 116, निज़ामाबाद के लिए 324, पेद्दापल्ली के लिए 53, रंगारेड्डी के लिए 320, संगारेड्डी के लिए 273, सूर्यापेट के लिए 59, सिद्दीपेट के लिए 63, राजन्ना सिलसिले के लिए 24, वखराबाद के लिए 146, वनपर्ती के लिए 50, वरंगल देही के लिए 74, वरंगल शहरी के लिए 89, यदादरी के लिए 30। इस तरह से जुमला 5,000 लोगों का टारगेट मुकम्मल किया जाएगा और ये टारगेट 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक है। 2001 से 2022 तक पैदा होने वाली एक नस्ल तकरीबन जवान हो चुकी है और इन 21 साल में कम से कम 20 से 25 लाख की आबादी का इजाफा हुआ है। 2021 की आबादी मुसलमानों की 45,59,425 थी, तब यह आबादी करीबन 65 लाख तक 70 लाख हो चुकी है। शायद इसीलिए भी हुकूमत ने मरदमशुमारी नहीं करवाई है, लेकिन यह हकीकत है कि आबादी में खासा इजाफा हुआ है। इसके बावजूद यानी 65 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 5,000 लोगों को फ़ीकस 1 लाख कर्ज दिया जाएगा। ये किस उसूल के तहत किया गया? रियासत में तो कुछ अखलाक, उसूल व ज़वाबित ही नज़र नहीं आते। मुसलमानों की वक्फ़ की हज़ारों एकड़ ज़मीन पर बिना डकार लिए खा जाओ, कोई नहीं पूछेगा। मुसलमानों की ऐसी ज़मीनात जो कि ख़ुद हुकूमत ने उसे कन्फर्म कर दिया था, जो कि कम से कम 20 से 25 लाख एकड़ ज़मीन हो सकती है, ये सब बिना डकार लिए खा गए हैं। अब इस पर हुकूमत ने 65 लाख की आबादी के लिए 5,000 दरख्वास्तें को फ़ीकस 1 लाख जो मंजूर करेगी, वो तो सिर्फ चिंगी चल्ला वक्फ़ की 2500 एकड़ ज़मीन की कीमत नहीं। अब हाल ही में मामरीपल्ली की 400 एकड़ से ज़ायद वक्फ़ ज़मीन कब्ज़ादारों के हवाले कर दी गई, वो भी कम से कम 2,000 करोड़ की है। ऐसी बेहिसाब ज़मीनात हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ 50 करोड़ रुपये मंजूर करते हुए मुसलमानों पर एहसान जता रही है। लाखों लोग खामखा दरख्वास्त नहीं दें तो बेहतर होगा, क्योंकि इनकी 99% दरख्वास्तें नामंजूर हो जाएंगी, तो फिर क्यों दरख्वास्तें दाखिल करने में वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं। इतनी मेहनत अगर हम अपना हक़ हासिल करने के लिए एहतजाज के लिए करें तो शायद हमारा मसला हल हो जाए। हुकूमत हर पस्त अक़वाम के फ़ीकस ख़ानदान को 10 लाख रुपये दलित बंधु स्कीम के तहत दे रही है, और ये हर ज़िले के लिए नहीं बल्कि हर असम्बली हल्के के लिए 500 यानी 120 हल्कों की 60,000 लोगों को फ़ीकस 10 लाख रुपये देगी, जिसके लिए 6,000 करोड़ का सर्फ आएगा। अब इसके मुकाबिल मुसलमानों को सिर्फ 50 करोड़ रुपये, क्या ये मुसलमानों के साथ मजाक नहीं तो कहलाएगा? हम तो कहते हैं कि हुकूमत हम पर तरस ना खाए, बल्कि हमारा जो हक़ है वो दे। आज मुसलमान भी ख़त गुर्बत से नीचे की सतह पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इनके औक़ाफ़ इमलाक के अरबों रुपये की है। इस पर मुसलमानों का कब्ज़ा का तनासुब 5% नहीं, तो फिर इसका जो मुआवजा होगा वो वक्फ बोर्ड में जमा कर दे, जो कि अरबों रुपये में होता है। इससे मुसलमानों को बैंक के सामने जी हुजूरी की ज़रूरत नहीं होगी और ना हुकूमत सब्सिडी देने की ज़रूरत होगी, बल्कि वक्फ में जमा सरमाया ही इतना होगा कि हर दरख्वास्त गुजार को फ़ीकस 25 से 50 लाख का कर्ज वो भी बिला सूदी हासिल हो सकता है। इन हालात में यही कहा जा सकता है कि वक्फ इमलाक और मुस्लिम इमलाक के सिलसिले में साबिक़ा हुकूमतें सबसे बड़ी मुजरिम रही हैं, और इस रवायत को TRS हुकूमत जारी ना रखे तो बेहतर होगा। TRS हुकूमत फौरी तौर पर ख़र्च की हद को 1 लाख तक 10 लाख करे और बजट को कम से कम 1,000 करोड़ से ज़ायद रखे, क्योंकि 4 या 5 साल के ज़ायद अरसे से
क़र्ज़ जारी नहीं किए गए और मुसलमानों के लिए भी यही तरीक़ाकार जारी किया जाए कि हर असम्बली हल्के में 500 लोगों को क़र्ज़ जारी किया जाए। इस तरह से 60,000 मुसलमानों को क़र्ज़ से इस्तेफ़ादा का मौका मिलेगा। अगर बैंक की शर्त रखना ही चाहते हैं तो बैंक को औक़ाफ़ी ज़मीनात की छुट्टी दी जाए जिस पर क़ाबिज़ीन बैठे हुए ऐश कर रहे हैं, जबकि गरीब मुसलमान पैसे का मोहताज हो रहा है। मुसलमानों का शऊर बेदार होना भी ज़रूरी है। वो इस मसले पर एहतजाज की तैयारी करें तो मैदान इनके हक़ में बेहतर होगा। ये इनके हक़ में बेहतर होगा, वरना हुकूमतें इन्हें कमज़ोर और गैर कारगर समझने लगी हैं। हमारी जमातें मिलियन मार्च में तो कामयाबी से मनाती हैं, लेकिन इस नाइंसाफ़ी पर इन्हें कोई मार्च याद नहीं आता। क्यों? क्या ये भी कमज़ोर और खौफज़दा हो चुके हैं? अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।